और कैसे हो जी सब? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ऑफलाइन एग्जाम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा? कोई आइडिया है किसी को? किसी को आइडिया नहीं है? Okay. So today you are going to study about the biopotential electrodes. Okay, and this is a very vital element present in the biomedical instrument measuring system. Okay, so as we know, if you look the main diagram of biomedical instrumentation, including the subject, that the main. Okay, so the instrument which is going to measure some signals from our body. Okay, and then that signal is going to be processed, and depending upon the analogy, or depending upon the our what the next the display system or anything that we have developed, according to that we can make a decision that हाँ, अभी सपोज मैं ब्रेन का कुछ मेजर कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल रेफरेंस ऐसा आना चाहिए. बट इफ देयर इज समथिंग एबनॉर्मल, और इफ यू वांट टू मेजर द हार्ट रेट, और that our lungs are functioning okay or not, that kind that if your lungs is okay, then there is a signal, a signal in the form of a graphical signal you can see for the normal people. And if there is abnormal, or if there is any abnormality in that, then we can easily find out कहाँ पे क्या कम है. We'll see later in the coming classes, but first these bio potential electrodes. Okay, this is very key element into the whole system. पहला क्या था? ह्यूमन बॉडी. ओके, तो जो अभी मेरे को यहां से सिग्नल चाहिए, है ना, इंस्ट्रूमेंट को. आपको पता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू वर्क ऑन द करंट वोल्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंफॉर्मेशन वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली होना चाहिए हमारे पास. देन वी कैन प्रोसेस एंड वी कैन डू वट एवर वी वांट विद दैट सिग्नल. But first of all, we need whatever information we are gathering or we are recording, that should be in the electrical in nature or electrical form में होना चाहिए. Okay. So what we'll do? क्या उन लोगों ने किया ऐसा? हमारे बॉडी में क्या है जो हम जिसको मेजर करके, या ऐसा क्या सिग्नल हो सकता है? So what is this electrodes is going to do with us, और क्या हमको हेल्प कर सकता है?
कौन बोलेगा? अरे हमारे बॉडी से बाहर के इंस्ट्रूमेंट में कुछ तो इंटरफेस करना होगा, हाँ? So that means I want to say, in order to measure and record that current or potential, anything in the body, it is necessary to provide some interface between the body and the electronic measuring apparatus, right? So current flow in the measuring circuit for at least a fraction of a period of time over which the measurement is going to be made, right? So basically, a biomedical electrode is a transducer that convert. This is a transducer, okay, that convert the body ionic current, body ionic current, okay, that convert body ionic current to the traditional current, which is going to flow to the electronic circuits, okay. क्या करता है, जो हमारे बॉडी का जो हमारा करंट है वो आयनिक होता है, और जो आपके मेटल या कंडक्टर में जिसके कारण करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ओके। सो आपका बॉडी इंटरफेस किया हुआ है बाहर के सिस्टम के साथ, सो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसा करंट फ्लो करता है, अदरवाइज वो सिस्टम समझ ही नहीं पाएगा कि क्या आया है, ओके। सो दिस बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड is going to, or is there are responsible for to convert body ionic current into the traditional electronic current that is going to flow into the electrode or any devices further, okay. So current is carried in the body by ions, right? Where it is carried in the electrode and it's lead wire, electrode में जो current flow होता है और जो lead wire में होता है वो क्या है? Due to electrons. अगर electrons move करेगा तो current flow होगा, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना? So what the final take from this discussion is, what this electrode is going to do? बोलो, कौन बोलेगा? लॉगिन करके सब भाग गया जी। सर क्वेश्चन नहीं सुने सर, क्वेश्चन बोल दिए फिर से। Question is that what electrodes is going to do for us? अभी तो डिस्कस किए ना। समझ आया? यस सर, शायद आयंस मेजर करता है शायद। It's not going to measure, it's going to convert ionic current into the traditional current, you can say. So basically this biopotential electrodes are transducer. Transducer क्या था, क्या बोले थे हम? What is transducer? अभिषेक गायब है।
ये है? अभिषेक गायब है। और वो कौशल भैया है कि नहीं है? बोलो जी, क्या ट्रांसड्यूसर क्या है? बॉडी के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसड्यूसर नहीं होना बाबू। आई एम आस्किंग ट्रांसड्यूसर, नॉट बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स। ओके, सिंपल जो ट्रांसड्यूसर जो मेजरमेंट में पड़े होगे और कहाँ कहाँ पड़े होगे, 2-3 जगह पे, वो मैं पूछ रहा हूँ। सर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सर। वन फॉर्म नहीं, वैसे नहीं है, ठीक। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू the another convenient form of energy is not electrical energy. Okay, जैसे कि गेज देखे हो? गेज तुम लोग, जो प्रेशर मेजरिंग रहता है, डायल ऐसे लगा हुआ है ना? तो यहां से आप क्या दे रहे हो? फोर्स जो मेजर करेगा, जो सपोज एयर प्रेशर मेजर करने वाला, दैट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कुछ एक दे रहे हो, एयर प्रेशर और फोर्स। उसके बाद ये आगे का जो सिस्टम है वो डिस्प्लेस्ड होता है, मूव करता है। इसमें गियर पिनियन लगा रहता है, तो उसके कारण इसकी निडल मूव करती है। ओके, तो मूव की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आया या अनदर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कन्वीनियंट क्यों बोला गया? क्योंकि अगर हम इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे और हम इसको कैलिब्रेट कर देंगे, स्टार्टिंग में सपोज 1 kg प्रेशर दिए, अभी नीडल मूव किया यहाँ तक, सपोज यहाँ पे मार्क कर दिए 1 kg, फिर 2 kg प्रेशर दिए, यहाँ तक मूव किया, यहाँ तक 2 kg मार्क कर, लाइक दिस हम मार्क कर। अभी जब आप ये खरीदोगे, इसके सामने 1 kg प्रेशर आएगा तो 1 दिखाएगा, राइट? तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं कन्वर्ट हुआ, बट ये जो बर्डन ट्यूब है ना, इसके अंदर जो ट्यूब रहता है, जो ये पूरा मतलब प्रोसेस को दिखाता है हमको, वो ट्रांसड्यूसर है। ओके, ठीक है। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कन्वीनियंट, अगर आपको इलेक्ट्रिकल में है तो आप इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर, आपको जैसा कन्वीनियंट है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इलेक्ट्रिकल। अगर मेरे को फिजिकल ही देखना है तो हम क्यों इलेक्ट्रिकल उसको कन्वर्ट करके पैसा खर्च करेंगे? ओके, सो इन दिस केस क्लियर है जी तुमको, गौरव? हाँ यस सर यस। ओके, सो नेक्स्ट, so what does biopotential electrode? It is हाँ, क्या करेगा ये बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड? हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो करंट है या करंट जो फ्लो करता है ना, वो आयन की वजह से करता है, समझ गए? और जो इलेक्ट्रॉन, ये सब जो तार वार मेटल ये सब में जो है, वो फ्लो करता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन्स के कारण।
अभी ये दोनों को इंटरफेस करने, सपोज यू वांट टू मेजर समथिंग फ्रॉम आवर बॉडी, तो वो मेजर कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही होगा। ओके, सो द मेन और द व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड इज वन लाइन आंसर मेरे को चाहिए। बोलो बोलो। तो बायोपोटेंशियल, इलेक्ट्रोड, बोलो। अरे अभी तो बोले ना, चेंजेस एंड ionic current into an, अब ट्रेडिशन लिख सकते हो, ट्रेडिशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कितने टाइप का होगा? एक है पोलराइज्ड, अभी उसका फिजिक्स समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और नॉन पोलराइज्ड। अब इसमें भी बहुत सारे, कि अगर इलेक्ट्रोड बोलोगे, इलेक्ट्रोड्स, ओके, और एक है सबसेक्शन इसका माइक्रो इलेक्ट्रोड, माइक्रो इलेक्ट्रोड, फिर बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड, ओके, इलेक्ट्रोड, और एक है निडल, और भी है बहुत सारा, बट ये सब इम्पोर्टेंट है जो हम डे टू डे, आप कभी जाओगे हॉस्पिटल तो आप ये सब देख सकते हैं। ओके, so these are the types of electrode we will see in the coming. Okay, now electrodes, okay, or half cell potential, ये सिर्फ हम बायोमेडिकल के केस में ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, हाफ सेल पोटेंशियल। See, the skin and the other tissue of our body, okay, or higher order organs, okay, these can be basically such as humans are electrolytic, and so we can model as an electrolytic solution. We can model this as an electrolytic solution. That means I want to say जो हमारा स्किन है और अदर जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन्स है ह्यूमंस का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह है। ओके,
सो हम इसको मॉडल कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ पूरा बॉडी को. ओके, like imagine a metallic electrode immersed in a electrolytic solution. एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड को इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सबमर्ज कर दिया गया. सो क्या होगा इसमें, इमीडिएटली आफ्टर द इमर्शन the electrode will begin to discharge some metallic ion into the solution, while some of the ions in the solution will start combining with the metallic electrode. जैसा बोलते हैं ना, जैसा पीएन जंक्शन में होता था, याद है कि भूल गए सब? हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, है ना? सेम काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर. ओके, ह्यूमन बॉडी टिश्यू को क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. और एक मेटेलिक, सपोज ये सॉल्यूशन है, ओके, और इसमें एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड को सबमर्ज कर दिया गया. तो बोल रहा है, या जो इसमें फेनोमेना, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोड्स ये है ना will begin discharge some metallic ion into the solution. okay, while इसका जो आयंस है वो कंबाइन होना स्टार्ट कर देगा इसके साथ. now a gradient charge is going to be built up, create a potential difference, okay, or electrode potential, or we are calling as a half cell potential. okay, ठीक है. दैट मीन्स सपोज ये इलेक्ट्रोलाइटिक है और एक इलेक्ट्रोड है, मेटल है, इसका आयन है सपोज. तो अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सी है ना, इलेक्ट्रोलाइट. ये इसके बाद जो ग्रेडियंट बना, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इसके बाद जो ग्रेडियंट एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाए. ओके, इसको हम डिनोट करेंगे VH से. ठीक, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव. ओके, ठीक है. क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को? Obviously a complex phenomena is happening near this interface. okay, ions migrate towards one side of the region or another, form two parallel layers of ion opposite charge. यहाँ पे जो दो opposite charge का लेयर है ना मतलब बनाता है. so this region is called the electrode double layer, and its ionic difference are the source of the electrode और हाफ सेल पोटेंशियल, है ना. इसको क्या बोलेंगे? डबल लेयर. और ये इसके कारण जो हमारा ये पोटेंशियल बन रहा है. ओके, जिसको हम हाफ सेल पोटेंशियल बोल मतलब नाम दे रहे हैं. ओके, इट्स लाइक if we take suppose ये electrolytic solution,
यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलोगे। अभी इसमें कुछ मेटल डाल दे। ये मेटल इलेक्ट्रोड है। ऐसा बॉडी के केस में एग्जैक्टली नहीं है, ये तो सॉल्यूशन अवेलेबल है ना, हम उसमें डिप मर्ज करें। ओके, बट ये जो सरफेस के पास ये जो ग्रेडियंट डिफरेंस हो, मतलब ग्रेडियंट बन रहा है ड्यू टू द आयंस, अपोजिट आयंस के कारण, उसको ही हम बोल रहे हैं हाफ सेल पोटेंशियल। ओके, ठीक है। इसको अगर आप उसमें देखो बॉडी और इसके साथ वाले में, तो ये हमारा स्किन टिश्यू हो जाएगा। okay? अभी इधर पॉजिटिव और इधर ये सरफेस पे नियर द, अभी इसके कारण जो पोटेंशियल है और ग्रेडियंट जो हमारे चार्ज का बना, उसके कारण हमारा एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता। ओके, दैट इज द योर डिनोटेड बाय VH। ओके, और ये जो लेयर हो गया ना, इसी को बोलते हैं डबल लेयर। डबल लेयर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अभी ये पेन सही से काम नहीं कर रहा। ओके, सो नेक्स्ट इज पोलराइज्ड, दैट पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें क्या होगा, दो तरह का जो इलेक्ट्रोड हम डिस्कस किए, पोलराइज एंड नॉन पोलराइज, इसी का जो कैटेगरी का जो परफेक्टली पोलराइज रहेगा तो क्या होगा, एक्चुअल means the perfectly polarized electrodes are those in which no actual charges is going to cross the electrode and electrolyte interface when a current is applied. That means there has to be a current across the interface and the electrode behaves through it via a capacitor. एक्चुअल में ऐसे करंट नहीं पास होगा। अगर ये बॉडी है और ये इलेक्ट्रोड है, अगर परफेक्टली पोलराइज है तो ये ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। और नॉन पोलराइज कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, जो ऐसा डायरेक्ट पास कर जाएगा करंट फ्रीली। ओके, नॉन पोलराइज electrode are those electrode in which current passes freely across the electrode electrolyte interface, requiring no energy to make the transition. Okay, that means perfectly non-polarized electrodes आप बोल सकते हो इसको कि मोस्टली यूज किया जाता है। ओके, बिकॉज इट हैज नो ओवर पोटेंशियल, मतलब इसमें जो ओवर पोटेंशियल का जो प्रॉब्लम आता है इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एनर्जी, है ना, टू मेक ए ट्रांजिशन। ओके, ठीक है। थर्ड वन वाज माइक्रो इलेक्ट्रोड। So micro electrodes are electrodes with tips having tip sufficiently small enough to penetrate a single cell in order to obtain reading within the cells. Okay, बहुत छोटा सा टिप होता है, एकदम हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते। ओके, the tip must be small enough to permit penetration without damaging the मतलब cells। obviously इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
The main function of microelectrodes are a potential recording and current injection. Okay. So electrodes, microelectrodes are having high impedance in mega ohm range because of their small size. अब इसमें भी कुछ types होते हैं, but we are not going to look on these aspects. And I want to make an equivalent circuit for this now. Human body and the electrodes. हम इसको मैथमेटिकली और इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट में कैसे इसको हम मॉडल करेंगे. ओके, दैट मीन्स द रिक्वायर्ड और द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस, सो दैट वी कैन, इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए ना, तभी तो आप इसमें कंट्रोल सिस्टम और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हमारे लॉ है वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. पावर कंजम्पशन का हो गया या जो भी है, सारा चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम ये टोटल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल, है ना, कंपोनेंट में, सपोज हमारा बॉडी ही है या मोटर ही है या कोई भी चीज, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स में या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में अगर मॉडल कर पाए तब तो हम कोई भी चीज को कैलकुलेट कर सकते, है ना. जैसे हम इसी को अगर हम मॉडलिंग करें कैपेसिटर, रजिस्टर, ऐसे करके, तो इसमें कोई भी रूल और फॉर्मूला लगाना बहुत आसान हो जाएगा हमारे. ओके, तो नाउ विल सी द इक्विवेलेंट मॉडल फॉर दिस. ओके, so equivalent model or equivalent circuit for this electrical equivalent. Okay, so suppose this is metal, okay, and this is इलेक्ट्रोलाइट. ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा उधर. ओके, इसका जो भी है बुक्स से लेके. यहाँ पे एक पोटेंशियल बन रहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव. ओके, and these can be modeled as parallel combination of capacitor and resistance. This is greater than nearly about 2 kilo ohms. Okay, and this is another resistance denoted by RE, is near about 5. This is the equivalent circuit, okay, with the electrodes. Okay, we can model like this. अगर और सिंप्लिसिटी इसको करो तो ये टोटल क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, है ना. दैट इज इम्पिडेंस व्हाट वी आर कॉलिंग. अगर कैपेसिटर है ना, फिर रजिस्टर है, फिर और रजिस्टर है, तो टोटल इसको हम इम्पिडेंस बोलते थे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, याद है. तो ये नियरली अबाउट एक इम्पिडेंस में, मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स और उसके बाद एक इम्पिडेंस Z. वो टोटल इंटरफेस को हम ऐसा
मॉडलिंग कर सकते हैं, और भी प्रिसाइजली मॉडलिंग कर सकते हैं डबल लेयर में, है ना। और भी है जो आप मॉडलिंग कर सकते हो, और प्रिसाइज मॉडलिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट रिसर्चर हैज गिवन एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मॉडलिंग फॉर दिस। ओके, ऑब्वियसली इसमें कुछ एरर होगा, है ना। एग्जैक्टली हमको वही रीडिंग नहीं मिल रही है जैसा हम मेजर, मतलब जो हमारा इनपुट सिग्नल है, सेम काइंड ऑफ हम एग्जैक्टली मॉडल नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंट रिसर्चर डिफरेंट वो टेक्निक्स, है ना, मॉडलिंग का, और कैपेसिटर का वैल्यू और रजिस्टर का वैल्यू, है ना, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बट हमारे लिए यही काफी है, ठीक है। ओके, बैटरी पूरा बंद। सो मेन जो है, जो इलेक्ट्रोड्स टाइप्स का जो हम देख रहे थे, एक तो पोलराइज और नॉन पोलराइज, वो तो है ही, है ना। जो माइक्रो इलेक्ट्रोड और डेप्थ और निडल इलेक्ट्रोड और सरफेस इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख उसका मैं ट्राई करूंगा कि उस कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊं, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जैसे ईसीजी में सरफेस इलेक्ट्रोड यूज होता है। ईसीजी आपको तो पता ही है क्या करता है, क्या करता है जी ईसीजी? सर हार्ट बीट चेक करता सर। तो बहुत तरह के इलेक्ट्रोड्स है। बैटरी पूरा 1 मिनट चार्ज में लगाने तो ये बंद हो जाएगा। फॉर अ सेकंड। So I will upload this for today. I will going to upload a material, और भी हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सारी चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। और इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, पहला इंस्ट्रूमेंट के बारे में है थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद जो अभी आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोड्स को, जो मेन एक एलिमेंट है वो मेजरिंग सिस्टम का, और उसके बाद सारा इंस्ट्रूमेंट है ना। ईसीजी के बारे में, ईईजी के बारे में, उसके अंदर कैसे कैसे रीडिंग होगा, कैसे रीड करेंगे, यही सब चीजें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास we'll start from here. We'll see some electrodes pictures, and then further we'll move.